data and business analytics, and other courses. We are privileged to have with us Ms. Shivangi and Mr. Praveen, who will be guiding us through this session, sharing the valuable insights. Now, I would like to invite Ms. Shivangi to take on this session forward. Thank you so much, Bhavya. Thank you everyone for joining in today. So in today's session, we will be talking about different careers in finance. We'll talk about actuarial science, FRM, CFA, CA, CPA. So different courses which finance undergrad can pursue along with their college. So I'll just share my screen and let me know in the chat box if it's available, if it's visible to you all. Also, if you all have any doubts in between, you all can put it up in the chat box, which is open for everyone. I hope my screen is visible. Okay. So, I think if I present it this way, it would be better. Okay. So we'll be talking about the different careers in finance. We'll start with actuarial science. Now, as you can see, I've mentioned that the actuarial science is course of the future. So when we say this is course of the future, future is all about uncertainties, right? So future is all about risk. Future is all about uh, uncertainties, different outcomes which are possible, and that is where we actuarial science or actuaries comes in, wherein we help you mitigate the future risk or the future uncertainties which arise due to different circumstances, right? So, first, let us talk about being a college student. If you are in your first year, second year, third year, why would you choose actuarial science as a career option? Now, the very first thing that comes to everyone's mind is that whether it has that kind of demand that a particular course should have, so that if I am studying it for like 3 to 4 years, I will be able to get a good job. So this course definitely has a very high demand, but the supply comparatively is lower. So if I say high demand, I'll quote few figures over here. Uh, IRDAI, which is the insurance regulator of India, they have mentioned that India by the year 2030 will be needing 25,000 plus actuaries, qualified actuaries, and we are standing not even at 10% level. So we barely have 2,500 actuaries qualified. So that's the number that we are aiming for in the coming 4 to 5 years, and that's the kind of demand that this particular course is having. And the supply comparatively is very, very low. So the future job prospects are very, very amazing for this particular course. Now, this is one of the top finance or analytics related courses. It does not only include finance, it also include analytics, in the sense that this is only one of the courses wherein you will be getting a hands-on experience on Excel and R programming both. So you will also, as a part of the syllabus, we have R programming and Excel both in this particular course. The career growth is very much exponential. So if you compare any yourself, if you're pursuing actuarial science, and if you compare yourself with any college graduate without any professional degree, you will see that the career growth is exponential. When I say exponential, uh, I'll be talking about the salary scale in the later slides as well. So when you start off, and after 2 to 3 years, when you qualify and when you have a good amount of work experience, the amount of salary that grows is exponentially very, very good.
There is obviously a very good work-life balance in this particular course. So you can see fellow actuaries, you can see students, qualified professionals, that they have a very good work-life balance. Because in this particular course, we are not supposed to study the entire day. What it demands is only just 4 hours, 3 to 4 hours every day, and consistently you have to just put in that kind of time into this course so that you can complete and you can qualify all the papers. It also gives you an opportunity, a global networking opportunity. So when I say global networking opportunity, the actuarial community is very close knit. So if we have a lot of sessions, seminars conducted in Middle East, we have in Singapore, we have in the Eastern countries, Malaysia, we have in India, we have across the different regions wherein student actuaries, qualified professionals are welcome. They can go there. They can meet different professionals across the globe and have a very good close knit community. So it's like most of the people are knowing most of the people. So op- the opportunities, the global opportunities, is also very good in this particular course. Now, let's talk. So, also the diversified field of study. So, when I say diversified field of study, I'll come to the course structure first. So, the content that we study over here is anonymous. So, when I say anonymous, it's not only the quantity wise that the syllabus is very vast, but what we study is very diverse. So, let's start with the basic. So you will be studying about basic probabilities, basic statistics, basic mathematics. When I say basic mathematics, those who had taken, I think, even the pure math or the applied math in 11 and 12, you might have studied integration differentiation, right? So we are just using basic integration and differentiation over here and applying it in a lot of places. So we are actually using integration to calculate interest rates. There is no use of trigonometry obviously over here. So basic of that, and then building on it. So we are also studying financial mathematics. So let's suppose I'll give you an example. If you, most of you, like just quickly raise of hands, have heard about health insurance policies, life insurance, term insurance, right? You might have heard this. People at your home talking that, this is the health insurance policy that we have, this is the term insurance policy we are going to buy, this is the premium that we are paying. Motor insurance is compulsory in India. So if you own a car, a two-wheeler, or a four-wheeler, you must have a third-party motor insurance. So all these different types of insurance products that you are hearing, we pay a premium, a price for it, be it yearly, be it monthly. So how is that premium being calculated, right? That is what we actuaries do. That is the pricing part. Apart from the pricing part, we're also involved in a lot of different places. So as a company, let's talk about LIC, which is the biggest life insurance company in India. So if it is selling you the policies, let's say suppose I am paying 15,000 premium every year for my term assurance product, and let's just suppose something happens to me after 2 years, and I had taken a policy of, let's say, suppose 50 lakhs. So my family, my dependents are getting the entire claim of 50 lakhs, but I've just paid 15,000 for 2 years, which is 30,000. So how is that being calculated? How you being paid? You are paying 30,000, and at the end of 2 years, you are getting a um, 50 lakhs amount. So that calculation, law of large numbers, application of reserving, how the premiums that we are paying to the insurance companies are building reserves on that, how the capital is being built. So all of these calculations are being done by us. Now you might have heard your parents talking about home loans or car loans, right? So when you go to a bank, you take a home loan, you take a car loan, you are paying certain EMI, equal monthly installment, every month, right? So how is that EMI being calculated? On what basis the bank is giving you the loan? Bank is not giving loan to everyone, right? So for example,
with my level of income, with my level of credit score, I'm able to get a loan of, let's say, suppose 60 lakhs at a particular level of interest. But being a college student, you might not be able to get that kind of loan with a better interest rates, right? So they might charge you a higher interest rate. So what will be the exact interest rate? You cannot just give you a random number, right? So all the calculations are done by us. We consider a lot of features, we consider a lot of data, analyze the past, and that is where analysis comes in, right? You are analyzing the past data. um, you are building a model out of it, different features. For example, what are the features that can be considered? You all can just type in the chat box, what are the features that can be considered while calculating premium? Tell me. Gender, male, female, whether the person is a smoker or a non-smoker. What we are trying to calculate, the probability of death, right? uh, Term assurance product is what? What's a term plan? If the person dies, the insurance company is going to pay the entire claim to the family, to the dependents, right? So, what's the probability of death? Higher the probability of death, higher will be the premium charged. Simple. What are the different features? Age, region you are living in. So, if you're staying in Delhi, and if someone is staying in, let's say, suppose northeast region of our country, so the level of pollution that Delhiites are facing compared to them, obviously, it's a huge difference over there, right? So even that acts as a factor, whether you're living in a tier one, tier two, tier three city. So all these different things are taken into account by us, and that's how we calculate the premium, right? Uh, so that is financial mathematics, life contingencies, pensions. So pension calculation is something for if I'm working, I'm throughout my working age, throughout the age of 60 till I'm working. Every month, the salary which I'm getting, a part of it is going towards EPF, which is Employee Provident Fund. So what is happening when I'm retiring at the age of 60 or 65? Every month, a pension small pension amount I'm receiving, right? So how is that pension amount being determined? How is that EPF amount is being determined? Everything is done by us. So pension is again very upcoming in India. In India, only 3%, not even 3%. So maybe 2.9, 2.7% people are actually buying insurance products. If you see the global average, 7% of the people across the globe do that. So India is very behind. So imagine the population of India, and then imagine if 7% of India's population starts buying insurance products, what will be the level of demand that this particular industry will have? At the very same time, government is also initiating a lot of different policies. They have insurance for all. So government of India is wanting that everyone in India should, buy insurance products. We are also having 100% FDI, foreign direct investment in insurance. So what do you mean by 100% FDI? So any, uh, now foreign company can directly come to India and sell their own insurance products without getting any Indian company involved. So the legal formalities have definitely gone down. General insurance, very upcoming. You might have heard about Truecaller, right? So cyber risk, fire insurance, the different kinds of catastrophic events which are happening. So, catastrophic modeling, climatic changes, how it's impacting companies financially, how we can financially mitigate those kind of risks. So, all these things are coming up, and so the new products are coming up. Truecaller has entered into a venture with HDFC Ergo, and they started up providing cyber security insurance, which earlier something you might not have imagined of, right? So we are also a part of banking services, investment. We study about capital markets. We study about stock markets, different fixed income assets. Economics is definitely one of the paper where we study base micro macro economics. Basic taxation accounting is also a part of a syllabus. As I already mentioned, we study modeling. Communication is very, very important because being a qualified actuary, if you're able to communicate to your clients, to your management, to your policy holders, to general public, that is very, very important. So a range of topics is what we are studying in. So anyone
of you as a college student who has basic understanding of mathematics, even class 10 level of mathematics is still fine, but 11, 12 applied mathematics, and you are having interest in numbers. So anyone who's attending this particular meeting, career in finance means numbers. So you should not be scared of numbers. You should have that kind of mindset that you love uh, handling problems. Problem solving mindset should be there. That is what you should get attracted towards for this particular course. In India, we have three different institutes from where you can pursue this particular career. So we have SOA, IFOA, and IEI. SOA is the US based institute. IFOA is UK based, which is one of the most oldest institute of the world. IEI is the Indian institute. Now, for the first 6 to 8 papers, I've mentioned the approximate costs below, so you all can see. This is the approximate cost for the first few papers. But I've just taken for the first few because after 3 to 4 years of your graduation, you get placed. And once you get placed, the company where you are working is reimbursing you for all your costs, for all the examination costs. So actuarial science is the only course wherein your company is asking you or requesting, or it's like motivating you to study. Because if you study and you clear papers and you qualify soon, it will be an advantage for the company itself, right? So they are reimbursing you to study, and at the same time, when you clear papers, they give you a salary increment. So here in actuarial science, the salary increment is not only on the basis of performance and inflation, but also on the level of papers that you are clearing, right? So these are the three institutes. I've not included any kind of coaching fees in this. So for the first 6 to 8 papers, the coaching fees will be somewhere around 1 lakhs. This is the course paper structure for IFOA and IEI. So IFOA and IEI have a similar structure. When I say similar structure, the syllabus is same. However, the paper pattern might differ depending on the institute. So we have 13 papers over here. The first 10 papers are compulsory. They form the core. So these are the core papers. Core papers meaning you study these form the foundation of your actuarial science. As I've already discussed, a lot of topics are mostly covered in the first 13 papers. And we also have basic economics, accounting, Excel, R programming, everything included as mentioned, right? Capital markets, about reserving, about modeling, communication. You also learn about how a life insurance company, general insurance company, pension company, investment companies, they work in a paper called CP1, which is actuarial practice. So once you are through with the first 10 papers, then you can specialize. So you can specialize in any field. So today we have general insurance, life insurance, we have health, in which you can specialize, investment, banking, and also data analysis is one of the field which is coming up where you can specialize. So when you start working, you understand that which field is suiting you, which field is more interest to you, and then you can specialize in that particular field. So for example, I have specialized in investment and finance. So according to what field you want to specialize in, you will appear for 3 more specialized papers. And that's how you complete your 13 actuarial papers to qualify as a fellow. So we call them as a fellow actually, right? SOA, which is the US based institute, the curriculum is a little bit different. Syllabus wise is more or less similar, but they have objective based questions in the first few exams. So the first 6 exams are mentioned over here. Again, if I say content wise is very similar, but the SOA syllabus is way more practical oriented. We also have VEEs. So most of you might be exempted from some of these three VEEs which are there: economics, accounting and finance, and statistics. These are all online examination, these VEEs, and there are some modules that you have to complete within your course. So
first you complete your 6 papers, you qualify as a associate, and then you have to appear for 3 or 4 more papers to qualify as a fellow from SOA. So these are the key sectors. As I've already talked about most of it, let's talk about consulting firms. So all the big six companies, all the big six, big four and big six companies are hiring. They have their own actuarial division and hiring actuarial students. Apart from that, nowadays a lot of new consulting companies are also coming up, and any one of you who later on in life wants to have their own startup, if you have a good 10 to 15 years of work experience in any of the fields, in any of the given fields, you can then open up your own consulting company, because there is a lot of work coming from US, UK, Middle East. So in India nowadays we are seeing that there are a lot of consulting firms coming up and providing lot more job opportunities to the students. So when I mentioned that the salary scale is very, very skewed, it's exponential. So at the entry level, anyone who is joining at the entry level, uh, if you are doing your college for let's say suppose 3 years or 4 years, and you have completed 4 to 8 actuarial papers, so you will be getting somewhere around 6 to 12 LPA. Now, if you compare the starting salary, you might say that it's very low. My even a grad even a just a graduate student is earning that kind of money, but that is for the only initial 1.5 years. And 6 to 12 LPA is something which is, I've taken a pessimist number. You might see someone getting a 15 LPA as well. And that is something which I'm talking about today's scenario. If you graduate after 2 years, 3 years, obviously that will be increased with the inflation. Um, so after completing 8 to 12 papers and having experience of 1 to 3 years, depending. So basically you are also having an experience of more 3 years, and at the same time you are clearing papers consistently. You will be earning somewhere around 12 to 25 LPA. And then as you qualify, complete all your papers, have good 3+ years of work experience, you will be earning somewhere around 30 plus LPA. Now, this number is very pessimist. You will see a lot of people earning also more than that, right? So someone just asked that I have heard that in this field, people are making a salary of 1 CR as well. Yes, it's true. There are people who are making that kind of money, but that comes after 10, 15 years of good work experience. Consistently you being working in a particular field and having that kind of knowledge, you can definitely reach that particular level with this particular course. So these are the different companies which I have mentioned. You can quickly have a look. It's very, very, this is not exhaustive at all. We have 100 plus companies in India who are hiring actual graduates. Most of these companies are based in Gurgaon, Delhi, Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore. These are the major regions where actual students and qualified professionals are working. Okay. So, yeah, these are also the leading employers. Now, Sir will be joining here to talk about the other finance courses. But just 2 minutes, if I take your time and explain, along with any financial courses that you are pursuing, it's very, very important that you upgrade yourselves. So, to upgrade yourselves, you need to have basic or essential data analysis knowledge. So, if you are going for actuarial science, going for FRM, CFA, CA, or any financial related degree, you must have a basic knowledge of Microsoft Excel. Microsoft Excel, you should also know advanced level of it, because when you start working, your employer will definitely want you to have a basic understanding of Excel. Uh, RStudio or Python, anyone. So if you're pursuing actuarial science, RStudio is already covered over there.
If you are not pursuing that, then Python is something basic Python you should know. SQL, again, very, very important for data management, because Excel is not able to handle that kind of data which SQL can. And it's very easy. Google Workspace helps you and collaborate with your colleagues, something which most of the companies are using nowadays. Power BI is for visualization. So all the dashboards, graphs that you see MBAs making, they use Power BI, and VBA, which is the back end of Excel. Again, very, very important. So just investing 10 hours, just putting in 10 hours in each of these, you will be able to, understand from basic to intermediate level of it. So that's it from my side. Now Praveen sir will join in. He will be taking over, and he will be talking about the rest of the courses. Okay, so very good evening to all of you. How are all of you? So, मैम ने जैसे कि एक फील्ड के बारे में हमें बताया. Is Hindi comfortable to all of you? All of you understand Hindi and English both? Yes, I want chat box replies because it is a two-way communication. I'm here to guide you all, and we already देखो कोर्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी है, बट व्हाई द FIC सेल हैज कॉल्ड अस ऑन बोर्ड इज दैट कि हम आपके क्वेरीज को अच्छे से सॉल्व कर सकें. सो लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड फिर हम लोग उस ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे. कूल एवरीवन? Am I visible and audible properly to all of you? Can we start? Okay, guys. Yes, yes, yes. Okay. So, ma'am talked about actuarial science. Now, since it's a finance stream, what all options are there in finance? Let's start discussing about a common career option which we all know is chartered accountancy. Okay, and then based on chartered accountancy, I will tell you about more career options. तो आज के दिन पे आप बहुत मिथ सुनते हो. बेसिक सबको मालूम है सीए के बारे में कि इसमें 3 लेवल्स होते हैं. फुल नेम इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये हमको नहीं करना है. ऐसा कोई है यहाँ पर जिसको सीए करना है? प्लीज रेज योर हैंड. आदित्य शर्मा, ये पहले का हाथ उठा है कि अभी हाथ उठाया है? ऐसा कोई है जिसको यहाँ पर सीए करना है? एनीवन? माधव को करना है, ठीक है. माधव, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक, एंड आपको सीए क्यों करना है? Yes, sir. Good morning. Good evening, sir. Sir, so the basic reason I am giving my foundation attempt this Jan. तो मेरा बेसिक था कि इंटर तक I'll explore this course, क्योंकि सब बोलते हैं कि try on CA, and probably because since data science and AI is the future of tomorrow, so CA is the only degree, professional degree, जहाँ पे we can say that these streams, new streams cannot destroy these professional courses and all. Okay, And okay, knowledge okay. Just wise. wait, I'll stop presenting. Okay. So माधव ने, मेरा जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल था वो माधव ने खुद अपने खुद से बोल दिया. किसी को क्लैरिटी नहीं है कि एंड गोल क्या है. देखो मैं आपको समझाता हूँ सीए हम लोग को क्यों करना होता है. सीए कोर्स जब मैंने परस्यू किया तो मेरे भी फैमिली में ऐसा था कि चलो कुछ मालूम नहीं है कोर्स के बारे में तो सीए कर लेते हैं. बट सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें आप क्या करते हो? आप कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको पूरा मेंटेन करते हो. कंपनी में जो ऑडिटिंग होता है वो आप करते हो. कंपनी का सारा टैक्सेशन, जैसे टैक्सेशन इंडिया में 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, राइट. इनडायरेक्ट मतलब आप समझते हो क्या होता है? जीएसटी. अभी रिसेंट में निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी में काफी अनाउंसमेंट्स किए हैं. और एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है. सो सीए का मेन काम होता है कंपनी का टैक्सेशन का प्लानिंग करना. साथ ही साथ हम और क्या पढ़ते हैं? हम कंपनी का स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी ले सकते हैं. व्हाट आर द चीफ रोल्स जो एक सीए को मिल सकता है? वो है कंपनी का वो सीएफओ बन सकता है, विच इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. एंड सीए कोर्स क्यों इतना अच्छा है, क्यों ज्यादा लोग करके सीए करते हैं? इसका रीजन ये है कि सीए में बहुत अच्छा एक डाइवर्सिटी है. मिथ्स क्या क्या है सीए को लेके?
सीए को लेके सबसे बड़ा मिथ है कि ये कोर्स का वैल्यू नहीं है, गलत। सीए कोर्स अगर कोई करता है तो उसका आज के दिन पे भी इंडिया में सबसे ज्यादा वैल्यू है फाइनेंस में। क्यों? बिकॉज आपको टेक्निकल इतना नॉलेज होगा, जैसे आपको पता होगा अकाउंट्स, कॉस्टिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ओके, तो ये सब आप पढ़ते हो, लॉ। तो बेसिकली सीए का करिकुलम काफी वास्ट है एंड पहले से सिलेबस को बहुत ही रेलेवेंट और हल्का कर दिया गया है। मैंने जब दिया था तो सीए इंटर में देयर वर 7 एग्जाम्स एंड सीए फाइनल में देयर वर 8 एग्जाम्स, बट अभी क्या हो गया है, उसको बहुत कट डाउन कर दिया गया है, एमसीक्यूज ला दिए गए हैं, सिलेबस को रेलेवेंट कर दिया गया है, ओपन बुक एग्जाम्स कर दिए गए हैं एंड कोर्स ड्यूरेशन को भी छोटा कर दिया गया है। आज के दिन पे अगर आप चाहो तो आप 3.5 से 4 साल में सीए बन सकते हो। एंड सीए कोर्स इंडिया में सबसे ज्यादा इतना क्यों चलता है? बिकॉज इसमें जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम है। आज के दिन पे कोई चाहे तो वो सीए फ्री में बन सकता है। कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूँ। सीए में आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटर जब आप देते हो तो आपका टोटल कॉस्टिंग आता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस, ठीक है। एंड जब आप सीए का आर्टिकलशिप करते हो 2 साल, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज का स्टाइपेंड तो मिलता ही मिलता है, ऊपर भी जा सकता है 7.5, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग, क्या बिग 4 में कर रहे हो, बिग 6 में कर रहे हो। आप सबको मालूम है बिग 4 फर्म्स क्या क्या है? केपीएमजी, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, और इसके साथ साथ में आपका बिग 6 फर्म्स में आता है ग्रांट थॉर्टन, बीडीओ। सो बेसिकली दीज आर बिग 6 फर्म्स जो आज के दिन पे सीए को हायर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जैसे माधव ने हमको बताया कि सर मेरे को तो सीए का सिर्फ 2 लेवल करना है, उसके बाद मैं देखता हूँ मैं एआई में अपना फ्यूचर बनाऊंगा, बट ये गलत है। आप कोई भी कोर्स को चालू करो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर मन होगा उनको एमबीए करने जाना है, ठीक है, बट उनको ये नहीं मालूम है मेरे को एमबीए क्यों करना है। सीए का पहले एंड गोल समझो कि सीए क्यों करता है। सीए मेनली ऑडिटिंग का काम करता है, टैक्सेशन का काम करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, पूरा फाइनेंस एक सीए अच्छे से। सीए एक फर्म को, जैसे कॉस्टिंग में आपको बताता हूँ कॉस्टिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारे पास में 5 लाख रुपए का बजट है, ठीक है। तो बेसिकली सीए क्या करेगा, अलग अलग तरीके से ट्राई करेगा कि कैसे इसको मैं 5 लाख में कर सकता हूँ, उसका पूरा कॉस्ट शीट बनाना। तो सीए इज अ ऑलराउंडर। तो कोर्स को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक भी आता है बहुत बार कि भाई हमारा तो फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है। आप ये समझो कोई भी कोर्स डिफिकल्ट है तभी उसका इतना वैल्यू है, राइट। आज के दिन पे अगर मान लो सीए फाइनल का रिजल्ट अगर 20% है, अगर वो 30% कर देंगे तो फिर सीए का वैल्यू कहाँ रहेगा, राइट। आपको ऐसा भी सुनने को मिला होगा कि भाई 3 साल 4 साल हो गया या फिर 5-6 अटेम्प्ट हो गए, वो सीए बन नहीं पा रहा है। हो सकता है पढ़ने का स्ट्रैटेजी गलत हो, राइट। सो बेसिकली सीए में एक जो इशू आएगा आपको वो ये आएगा कि थोड़ा मगिंग अप रहता है, बट बाकी सीए इज अ वेरी 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 रेलेवेंट करिकुलम इन टुडे। एंड कोई भी अगर यहाँ पर सीए करना चाहता है, इट्स अ वेरी गुड गो। बहुत ही चीप ऑप्शन है, आपको बहुत ज्यादा रुपया भी नहीं खर्चा करना है और आप आज के दिन पे 3.5 से 4 साल में आप सीए बन सकते हो। एंड सीए इज द ओनली कोर्स अलोंग विद एक्चुअरियल साइंस जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है बनने से पहले। आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे कि आईटीसी, जैसे कि कोई भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको हर एक कंपनी मौका देती है। कोई डॉज बैंक हो गया, ग्लोबल बैंक हो गया, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, बेन एंड कंपनी, आप कहीं पर भी अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सीए कोर्स। अब जैसे माधव के पास उसने बताया कि वो भाई, मैं माधव का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, माधव डोंट गेट ऑफेंडेड। तो माधव ने बताया कि वो सीए इंटर तक करेगा, उसके बाद ही विल एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। तो अगर कोई सीए फाइनलिस्ट बन जाता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? देखो, एक कोर्स जो है जो बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में होता है जिसका नाम है एफआरएम। तो एफआरएम का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अगेन हमको ये समझना होगा कि एफआरएम कोर्स किसको करना है। आज के दिन पे मैं आपको बताता हूँ हर एक बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। तो फॉर एग्जांपल रिस्क का मैं डिफिनेशन देता हूँ। अगर मेरे कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है कोई मेरा पैसा लेके भाग जाए, मेरा कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर दे। तो फ्रॉड के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। रिस्क हर जगह पे होता है। मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में बहुत पैसा है। पैसा मतलब क्या होता है? मेरे पास में वेल्थ है, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरे पास गाड़ी है, बट मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक? बैंक क्या करता है? बैंक हमको लोन देता है। लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कितना रहेगा? 8%। बट बैंक क्या करता है? जब डिपॉजिट लेता है तो क्या बैंक 8% देता है? द आंसर इज नो। जब बैंक डिपॉजिट लेगा तो कितना रेट पे लेगा? 5%, मे बी 4.5%।
और जो बीच का जो होता है वो बैंक का कमीशन रहता है, राइट। यूएस में बहुत बड़ा एक क्रेडिट क्राइसिस हुआ था, किसको किसको मालूम है, प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ पर किसको मालूम है कि यूएस का क्रेडिट क्राइसिस के बारे में? 2006 से लेके 8 के बीच में यूएस में एक बहुत बड़ा क्रेडिट क्राइसिस हुआ था। क्यों? बिकॉज बैंक के मैनेजर्स ने बिना पूछे, बिना वेरीफाई किए लोगों को लोन्स दे दिए। अब जो लोग ने लोन लिया उनका औकात ही नहीं था कि वो ईएमआई चुका पाए, वो चुका नहीं पाए, तो जिनको पैसा मिलना था, जिनको पैसा मिलना था मतलब जिनका पैसा था, जो डिपॉजिट रखे थे बैंक में, उनको उनका पैसा मिला नहीं। इस तरीके से पूरा सिस्टम कोलैप्स में चला गया। सो बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आपको करना है 1 साल का, वो है एफआरएम प्रोग्राम, विच इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। 1 साल में आप कर सकते हो। यूएस का प्रोग्राम है, गार्प इंस्टीट्यूट कराती है, विच इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, एंड ये कोर्स आप 2 लाख रुपए के अंदर कर सकते हो। ये कोर्स में 2 लेवल होते हैं। पहले लेवल में आप क्या क्या सीखते हो? पहले लेवल में आप सीखते हो पूरा रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक्स, क्वांट्स है इसमें। उसके बाद में आप पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हो, वैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में सीखते हो। एंड लेवल 2 इज टोटली ऑन हाउ द बैंकिंग फंक्शंस एंड हाउ यू कैन मैनेज रिस्क। फॉर एग्जांपल, बैंक में अलग अलग टाइप का रिस्क होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। FIC सेल हैज इनवाइटेड एक्चुएटर्स टुडे, ओके, बट व्हाट इफ एक्चुएटर्स आज यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, बट मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है। अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? तो FIC सेल एंड हंसराज कॉलेज का रेपुटेशन रिस्क पे है, तो ये लोग पहले पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, राइट। तो ये टाइप ऑफ रिस्क है। मार्केट रिस्क मतलब हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड, किसने किसने आज तक कभी ट्रेडिंग किया है? देखा नहीं, किया है। बहुत बार क्या होता है, आप जब ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट कहाँ जाता है? नीचे। सो मार्केट अगर आपको फेवर नहीं कर रहा है तो मार्केट रिस्क है। कोई आपका पैसा लेके भाग जाए, क्रेडिट रिस्क है। आपके कंपनी में ऑपरेशंस में फ्रॉड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज में आपने पैसा जमा किया, ठीक है, कॉलेज का एक एम्प्लॉय था, वो अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा ले लिया आपसे, ठीक है, और वो ऐसा बहुत टाइम तक करते गया। ये ऑपरेशनल प्रोसेस में फ्रॉड इसको बोलते हैं, राइट। तो कॉलेज का ऑपरेशंस में फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे करके पूरा जो डिविजन ऑफ रिस्क है वो आप समझते हो। करंट रिस्क इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो आप समझते हो। सर मैंने ऐसा सुना है कि FRM करने के बाद में हमें तो जॉब ही नहीं मिलती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जॉब बेसिकली 7 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक का आपका जॉब लग सकता है इफ यू आर FRM क्वालिफाइड। डिपेंड ये करता है कि आप FRM कैसे क्वालिफाई किए हो। आपने रट्टा मारे हैं कि एक्चुअल में आपको स्प्रेडशीट्स का नॉलेज है, आप मॉडल समझते हो। जैसे आपको बैंकिंग में बैजल मॉडल, बैजल नॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपको बैजल नॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, पिलर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, पूरा रेगुलेशंस आपको पढ़ाया जाएगा। सो बेसिकली अगर आप देख रहे हो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स, MNC बैंक्स, रिस्क कंसल्टेंट आपको बनना है, ठीक है, आपको कोई मे बी टॉप 6 फर्म्स में काम करना है, टॉप मल्टी, आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मेरे भी फर्म में एक FRM का दरकार पड़ सकता है। हो सकता है बहुत सारे फर्म में रिस्क होते हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए कोई एक आदमी होता है, वो होता है बेसिकली FRM। एंड सिंस इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम, बिकॉज गार्प इंस्टीट्यूट ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स इसको कराती है, राइट। पूरा MCQ मॉडल में एग्जाम होता है और इसका एलिजिबिलिटी भी कुछ नहीं है। आप इसको क्लास 12 के बाद परस्यू कर सकते हो, लाइक CA एंड एक्चुअल्स है, ओके। एंड इसमें आपको क्वांट मॉडलिंग का भी, आप देखते हो लिंक्डइन, अगर आपका अकाउंट नहीं है, सब लोग बच्चों अपना लिंक्डइन पे एक अकाउंट बनाओ, ठीक है, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और देखो आज के दिन पे क्या चल रहा है। क्वांट मॉडलिंग बोल के एक चीज बहुत फेवर, जैसे माधव ने मेरे को बोला सर मेरे को AI, टेक, फाइनेंस, सो बेसिकली फिनटेक जिसको बोलते हैं ना, फिनटेक, फाइनेंस, क्वांट्स, टेक, AI, FRM कोर्स इज द बेस्ट डेजिग्नेशन फॉर दैट, ओके। बट FRM और CFA में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है कि FRM आपका रिस्क के ऊपर में होता है एंड CFA आपका इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में होता है। CFA कोर्स अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना होगा। CFA कोर्स टोटल में 4 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें 3 लाख रुपए तो CFA इंस्टीट्यूट ले लेगी, एंड अब अगर आप कहीं से भी ट्रेनिंग वगैरह लेते हो तो आपका मोटा मोटी 1,60,000 70,000 तक का खर्चा आता है, ठीक है। जैसे FRM का मैंने जो आपको बताया ना, 1,80,000 के अंदर में आपका सब कुछ हो जाता है। एंड ये 1 साल का कोर्स है, आपको एलिजिबल, अभी जैसे हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो जैसे अगर किसी को अपना फाइनेंस और रिस्क में करियर बनाना है, यस मोस्ट ऑफ यू, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चालू ही करना है तो आप FRM कोर्स से चालू करो। तो क्या होगा, जब आप सेकेंड ईयर में होंगे या फिर आप जब सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे
तब तक आपका एफआरएम भी हो जाएगा, आपको फाइनेंस एंड रिस्क का नॉलेज भी हो जाएगा, आपके पास में एक डिग्री हो जाएगी। उसके बाद में आप सीएफए चालू करो, बिकॉज सीएफए में एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। व्हेन यू आर इन द लास्ट 23 मंथ्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, मतलब अगर हम लोग 3 ईयर का ग्रेजुएशन मान के चलते हैं, आपको ऑनर्स नहीं करना है, तो भी आप जब सेकेंड ईयर में होते हो, लास्ट 23 मंथ्स, तब आप दे सकते हो लेवल 1। जब आप लास्ट 11 मंथ्स में होते हो, मतलब थर्ड ईयर, तब आप दे सकते हो लेवल 2। एंड व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट, मतलब अगर हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन मानते हैं, तो आप ग्रेजुएट होने के बाद दे सकते हो लेवल 3। So by the time you are a graduate, you are already a qualified FRM and you are a CFA finalist. Are you understanding? Cool everyone, सब लोग मेरे साथ साथ हैं। Are you all understanding? हमें क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ सर? अब आप ये तो बताइए कि FRM के जैसे आपने बताया, CFA में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? तो CFA में आपके पास में टोटल में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप पढ़ते हो डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे सट्टाबाजी, आप समझते हो सट्टाबाजी? मान लेते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स में और मुंबई इंडियंस में एक मैच चल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स हो गया अब तो दिल्ली कैपिटल्स में और मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है, आपको सट्टा लगाना है, ठीक है? तो बेसिकली अंडरलाइन क्या है? जो क्रिकेट मैच हो रहा है वो है। आप बोलते हो कि भाई 200 के ऊपर जितना रन बनाएगी मुंबई इंडियंस, मेरे को हर एक रन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चरिंग होता है। शेयर प्राइस पे भी हो सकता है, इंडेक्स पे भी हो सकता है, ऑयल प्राइसेस पे हो सकता है, बेसिकली बॉन्ड के प्राइसेस पे, किसी पे भी, माने कोई भी चीज पे आप डेरिवेटिव सट्टाबाजी कर सकते हो। एथिक्स, हर एक, आप कोई भी कोर्स करो, आपको एथिक्स सब में पढ़ाया जाएगा कि भाई आप एक प्रोफेशनल, क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो आपको हर एक दिन एक एथिकल वे में काम को करना है। आज जैसे मैं एआई सिखाता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, मैं बेसिकली भी ऑफलाइन सिखाता हूँ एआई। सबसे पहले मैं एक ही चीज चालू करता हूँ कि एआई का कभी भी अनएथिकल यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है? एक कूल ग्रुप होता है, हंसराज कॉलेज में भी गया हूँ, तो वहां पर एक कूल ग्रुप होता है। जैसे आपका जो पार्क है, वहां पर बेसिकली 4-5 जन बैठे हैं, एक जन ने एआई सीखा, उसने बाकी सब फ्रेंड्स का बिना परमिशन एआई के चैट जीपीटी में फोटो डाल दी। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है उसको एआई कैसे यूज करे आगे जाके, स्पेशली फॉर गर्ल्स, यू डोंट नो इट। सो हर एक चीज में आपको एथिक्स मेंटेन करना होगा, राइट? अभी जैसे आपने देखा कांग्रेस ने क्या किया रिसेंट, हैव यू ऑल सीन द न्यूज? यू आर फ्रॉम दिल्ली, सो आपको मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या किया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, उनका और उनकी मदर के साथ एक उन्होंने एआई वीडियो बनाया। दैट इज अनएथिकल यूज ऑफ एआई। सो एथिक्स आपको हर जगह पे सिखाया जाएगा। उसके बाद में आप क्या सीखते हो? आप बॉन्ड सीखते हो। बॉन्ड मतलब क्या होता है? लोन एग्रीमेंट, फिक्स इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, आप सीएफए में घुसोगे शेयर मार्केट के वजह से, बट अभी हो क्या रहा है पूरा दुनिया में, 80 से 90% जो पैसा है वो फिक्स इनकम में है। क्यों? सब लोग को सेफ खेलना है। आप अपने पेरेंट्स से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, सब लोग क्या बोलेंगे? हमारा पैसा तो भैया हम ब्याजू चलाते हैं। ब्याजू चलाते का मतलब क्या है? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बेसिकली 1 करोड़ रुपया उधार दिया किसी को, 12% ब्याज में दिया। 12% समझते हो? 12% मतलब साल का 12%, माने हर महीना उनको उसका 1% ब्याज चाहिए, मतलब 1 करोड़ का 1 लाख रुपीज उनको ब्याज चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी मैं दिल्ली में था, एक जूस शॉप वाले ने मेरे को बोला, भैया कोई है तो बताइएगा, मेरे को अपना दुकान ना भाड़े पे लगाना है, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा महीने का 30-35 हजार का कमाई होता है। अगर मैं शॉप को रेंट पे लगा दूंगा तो मेरे को महीने का 50 हजार रुपया आ जाएगा और मेरा दिमाग खाली हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज के दिन पे लोग ये कर रहे हैं। अगर कभी अपना मेच्योरिटी में, फॉर एग्जांपल मेच्योरिटी मतलब मैं भूल से बोल दिया, अगर कभी आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना हो ना, उसमें एक चीज जरूर करना, 10 तो घर बना लेना। तुम्हारे को पैसिव इनकम आना चाहिए। जो बोलते हैं ना पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम ऐसे ही आता है। घर बना लो, 3-4-5 जितना घर बनाना है घर बना लो और सबको रेंट पे चढ़ा दो। आजीवन तुम्हारा आने वाला जो जनरेशन है वो भी बिना कुछ किए बैठ के खा सकता है। तो दिस इज हाउ यू प्लान योर रिटायरमेंट। तो फिक्स इनकम में बहुत पैसा लगाओ। फिक्स इनकम मतलब लोन्स, रियल एस्टेट आप पढ़ते हो, उसके बाद में आप पढ़ते हो इक्विटी, आप पढ़ते हो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद मोतीलाल ओसवाल, तो हम लोग उसकी मीटिंग्स में जाते रहते हैं। आपको मालूम है एआईएफ बोल के एक चीज होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। हम लोग के लिए क्या है? म्यूचुअल फंड है, राइट? आज अगर मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स, बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आपको मालूम है लोग कैसे पैसा लगाते हैं? वहां पर वो लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जहां का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 2 करोड़, उसके नीचे आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, राइट? ब्रिज फंड्स में पैसा लगाते हैं कि भाई अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को अभी 6 जगह पे सेंटर खोलना है, मेरे को अभी 5 करोड़ का बहुत डायर नीड है, तो हो सकता है मैं 20% ब्याज में भी पैसा ले लूं, क्योंकि मेरे को मेरा विजन मालूम है। ऐसे टाइप के लोग को वो लोग पढ़ करते हैं और फंडिंग करते हैं। और अगर पैसा डूब भी गया तो क्या है? मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, राइट? मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा चीज है। हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न।
तो सीएफए में क्या 360 डिग्री पूरा वॉल स्ट्रीट के बारे में पढ़ते हो, बट आपके मन में एक माइंडसेट होगा, आपके मन में एक मिथ होगा कि भैया मेरे को मैं बहुत दिन से बात करता हूँ कि भाई तुम सीएफए क्यों कर रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ जॉब कैटेगरी, इट्स नॉट दैट इफ यू डू सीएफए देन यू कैन डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नो, इट्स वेरी रॉन्ग। अगर कोई भी आपको चीज सिखा रहा है तो बिल्कुल गलत सिखा रहा है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो प्रोफाइल है वो सीएफए उसमें हेल्प कर सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आप सीएफए करोगे तो ही आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलेगा। एंड वाई टू नैरो डाउन योर चॉइसेस, आप सीएफए बन के ग्लोबल बैंक्स में काम कर सकते हो, आप इक्विटी में काम कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप एडवाइजरी दे सकते हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है सीएफए में। तो ऐसे करके देयर आर 10 टॉपिक्स इन सीएफए जो आपको स्टडी करना है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 एंड लेवल 2 आर बेसिकली एमसीक्यूज। लेवल 1 साल में 4 बार होता है, लेवल 2 3 बार होता है, लेवल 3 2 बार होता है। ओके, सो बेसिकली लेवल 1 एंड लेवल 2 आर एमसीक्यू, एक ही दिन में एग्जाम होता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस यूएस कोर्सेज इज दैट कि इसमें क्या होता है ना, आपको मतलब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा कॉलेज के एग्जाम कहीं नहीं आ जाए, क्योंकि आप कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ प्रोमेट्रिक लोकेशन जहां पर जाके आपको एग्जाम देना होता है ना, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। जैसे एफआरएम का एग्जाम में क्या है, आपको पासपोर्ट भी चाहिए हो सकता है और आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी एग्जाम दे सकते हो, बट सीएफए के एग्जाम के लिए एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है। एंड प्रोमेट्रिक लोकेशन इंडिया में अक्रॉस 9 to 10 प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे जैसे दिल्ली में है, ठीक है। तो बेसिकली आप वहां पर जाके एग्जाम दे सकते हो। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट सीएफए इज द करिकुलम इज वेरी 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 कूल। मतलब आपको पढ़ के लगेगा आप कुछ अच्छा चीज पढ़ रहे हो, रियल लाइफ रिलेटेड। जैसे मैम ने आपको बताया होगा कि एक्चुअलीज में भी रियल लाइफ रिलेटेड चीज है, वैसे सीएफए में भी आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ भाई बहुत रियल लाइफ रिलेटेड चीज में पढ़ रहा हूँ, करिकुलम बहुत अच्छा है उसका। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत रेलेवेंट कंटेंट है, एंड जॉब्स बहुत है। मतलब जैसे आज के दिन पे आप देखो सीएफए में बस खाली एक जो बैरियर है, क्यों उतना नाम अभी जैसे बहुत लोग कर रहे हैं सीएफए, बट क्यों एकदम 100% सीए जैसा नहीं हो पा रहे, इज द कॉस्ट बैरियर। एंड अगर आपको कॉस्ट बैरियर है और फिर भी अगर आप सीएफए करना चाहते हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए मेल कर सकते हो इंस्टीट्यूट में, राइट। तो उसके लिए प्रेप प्रोवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग क्या कराते हैं, जो बच्चा को हो सकता है कि उसको उतना डायर नीड हो, तो हम लोग बेसिकली उसका स्कॉलरशिप में भी हेल्प कराते हैं। तो बेसिकली आप कैसे प्रेप प्रोवाइडर को सिलेक्ट करते हो उसमें बहुत मैटर करता है। तो आप चाहो तो आप सीएफए पूरा स्कॉलरशिप में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। रिशिता इज आस्किंग अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एफआरएम का जो एग्जाम होता है वो साल में 3 बार होता है। इट इज इन मई, अगस्त एंड नवंबर, ओके। एंड इन दोनों एग्जाम जो सीएफए एफआरएम की मैंने आपसे बात की है, तो इन दोनों में एग्जाम में आपको कैलकुलेटर लेना होता है, जैसे विच इज टेक्सास VA2 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स। जो ये बेसिकली कैलकुलेटर आता है, थोड़ा महंगा आता है, 4000 रुपए का कैलकुलेटर आता है। टेक्सास VA2 प्लस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज द नेम ऑफ द कैलकुलेटर। तो ये दोनों एग्जाम आप कैलकुलेटर इस कैलकुलेटर से आप दे सकते हो, ठीक है। एंड सीएफए का सबसे बड़ा बात करिए, लेवल 3 में आजकल ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बेसिकली पहले क्या होता था, लोग बोलते थे बहुत इजी है सीएफए, तो बहुत इजी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया। सीएफए पहले से बहुत चैलेंजिंग हो गया है। दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग न्यू AI, पाइथन एक्सेट्रा इन द करिकुलम। एंड इसका एग्जाम बहुत बार होता है, बट आपको बहुत बार देना नहीं है, बिकॉज एग्जाम बहुत महंगा होता है इसका, ठीक है ना। इसको आपको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बिकॉज अगर आप फेल हो जाते हो तो मिनिमम जो आपको इन्वेस्ट करना होगा अगेन वो आपका 60-70,000 रुपीज आपको एग्जाम फीस इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। And the best thing about CFA is that the CFA institute, when you register with the CFA institute, you get all the candidate resources in the LMS only. उनका खुद का अपना एक LMS है जहां पर आपको पूरा रीडिंग मटेरियल and they give you all the MCQs etc. in the candidate resources. More than 3,000 questions are there for practice. तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, तो वो आपको CFA इंस्टीट्यूट में मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज अबाउट CFA. आई विल रन यू थ्रू द स्लाइड्स एज वेल एंड टॉकिंग कि भाई सर मेरे को कंफ्यूजन है कि मेरे को कहाँ जाना, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो मैं अभी आपको डिफरेंशिएट करने का हेल्प करता हूँ। अगर आपको ये है कि भाई आपको ऑलराउंडर बनना है और आपको पढ़ाई, देखो एक जन को ना अंदर से मालूम होता है कि वो कितना पढ़ सकता है। अगर आप ये हो कि आप बहुत हार्डवर्क कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट टैकल द लो पासिंग परसेंटेजेस, देन यू कैन गो विद सीए। मतलब जैसे सीए का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसका पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम है पहले से, जो कि बहुत इंप्रूव हो गया है। 20% पासिंग रिजल्ट इज नॉट बैड, 20% पासिंग रिजल्ट इज गुड ओनली, ठीक है। बट सीए में क्या होता है, टोटल में आपको 16 एग्जाम्स देने हैं, फाउंडेशन में 4, इंटर में 6, फाइनल में 6, ओके। बट सीएफए में क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत इजी है, बट बहुत इजी नहीं है। एमसीक्यू एग्जाम देना बहुत चैलेंजिंग है। अगर आपको वॉल स्ट्रीट का मन है, आपको ये है कि भाई मेरे को तो आई कैन जस्ट डीप डाइव इनटू स्टॉक मार्केट्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, देखो डोंट गेट अट्रैक्टेड टू स्टॉक मार्केट्स जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है यहाँ एक का डबल हो सकता है,
किसने किसने फिर हेरा फेरी देखा, उसमें दिखा था ना 1 का डबल। तो बेसिकली वैसा नहीं, 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है, 21 दिन में पैसा जीरो हो जाता है शेयर मार्केट में, ठीक है। So I personally feel that many of you are invested are basically interested in doing the CFA program just because कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा मेरा यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, बट वैसा नहीं है, ठीक है ना। आपको स्लो पेशेंट ग्रोथ ही आपको मेंटेन करना है। द बेस्ट थिंग दैट अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल और अ इन्वेस्टर कैन डू इज, आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं, आपको इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है ना। एंड आप आज के दिन पे कुछ भी करो, आप एआई के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी जैसे ये जो सेशन है ना, अभी जैसे मैं ले रहा हूँ, बट 2 साल में आपको बहुत लंबा टाइम फ्रेम बता दिया। मेरे जैसा एक बॉट होगा, आप उससे कुछ भी पूछो। मेरा तो एक लिमिटेशन है ना, आज मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्यों लूंगा, तो बेसिकली मेरा भी ब्रेन का लिमिटेशन है, बट एआई का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उसको पूछोगे नहीं मेरे को अकाउंट्स प्लस टेक प्लस एआई का कोर्स बताओ, वो बता देगा। तो एआई आप हर दिन अगर इन्वेस्ट नहीं करो उसमें 15 से 20 मिनट, तो बेसिकली आप पीछे हो जा रहे हो। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ। How many of you know any other AI tool except ChatGPT or Gemini? Any other AI tool? Please raise your hand. Let's discuss this. When we have sat together, na, at least it should add some value. Please type it in the chat box. Please type it in the chat box. So we started with CA. I moved to FRM. I moved to CFA. Yeah, Grok, Gamma, Perplexity. Very good. Claude. Good. अच्छा, फॉर परप्लेक्सिटी यूजर्स आई टेल यू, अगर आप एयरटेल यूजर है तो 1 साल का आपको प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। और परप्लेक्सिटी का सबसे बड़ा अच्छा बात क्या है, उसका एक नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप पे भी आज के दिन पे एआई से बात कर सकते हो। को पायलट इज वेरी गुड, नोटबुक एलएम, गामा, यस, ये सब आपको आना चाहिए आज के दिन पे। आज के दिन पे आपका लवेबल, यस, हमने खुद ने अभी लवेबल एआई यूज करके, हमारा एक फाइनेंस कंसल्टिंग विंग है, तो हमने उसका खुद का वेबसाइट हमने बनाया है पूरा, ठीक है। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा एक जो शॉर्ट बेसिकली मास्टर क्लास का हमारा एक जो ट्रेनिंग होता है अम्ब्रेलो एडिशिल्ड का, हम पूरा उसका सारा चीज एआई के थ्रू कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। आप 15 मिनट स्पेंड करो, आपको मालूम नहीं है, इट कैन डू वंडर्स। पढ़ने वाले बच्चों के लिए गामा एंड नोटबुक एलएम आप डालो, बस खाली नोटबुक एलएम। तो आज अभी सेशन के तुरंत बाद मैंने वॉशरूम भी मत जाना, नोटबुक एलएम डाउनलोड करके उस पर अपना सारे नोट्स डाल दो और देखो कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। बोलोगे सर आए थे बोल के गए। मैंने हर एक पढ़ने वाले बच्चे को नोटबुक एलएम यूज करना ही चाहिए। इट कैन मेक ऑडियो समरीज, इट कैन मेक वीडियो समरीज। नोटबुक एलएम, नोटबुक किताब एलएम, एल फॉर लुधियाना, एम फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो नोटबुक एलएम गूगल का सॉफ्टवेयर है। हर एक एडुकेटर एक स्टूडेंट को नोटबुक एलएम के बारे में, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप कितने, मैं आपको बता रहा हूँ, यू नो व्हाट, यू नीड टू कैच द ट्रेंड। जैसे माधव ने बोला, माधव ने क्या बोला मेरे को कि सर मेरे को टेक एआई, उसको मालूम है आज के दिन पे टेक एआई के बिना कुछ भी नहीं होगा। एंड कभी भी आप जीवन में एडवाइस लीजिए तो सक्सेसफुल लोगों से लीजिए, फेलियर वाले लोगों से आप एडवाइस लो, बट आपको एक नेगेटिव और पॉजिटिव एडवाइस का आपको वो समझना होगा। अगर आप एक ऐसे आदमी से पूछोगे जो सीए फाइनलिस्ट है, वो 10 बार अटेम्प्ट दे दिया, वो नहीं क्लियर कर पा रहे, तो वो आपका पक्का से मोराल डाउन कर देगा, बोलेगा यार कुछ भी करना सीए मत करना। आप समझ पा रहे हो। लेकिन आप एक ऐसे अच्छे सीएफओ से आप एडवाइस लो, आप मेरे जैसे से एडवाइस लो जिसने सीए क्लियर किया है, ठीक है, वो आपको एडवाइस देगा कि भाई सीए से अच्छा कोर्स नहीं है, एफआरएम से अच्छा कोर्स नहीं है। आप एक ऐसे लोग से एडवाइस ले रहे हो जो एफआरएम किया बट वो खाली रट लिया, तो ऑब्वियस बात है ना, ही कैन नॉट क्रैक इंटरव्यू, ठीक है। जो बिल्डिंग में 3 तला में भैया दीदी, उनसे एडवाइस लेना बंद करिए। अगर वो अच्छे लेवल पे हैं तो आप उनसे एडवाइस लो, बट आपको आप किससे एडवाइस ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। एंड नाउ आई विल मूव टू सम मोर कोर्सेज जो आप कर सकते हो। जैसे एक कोर्स है यूएस का सीपीए, जैसे मैंने आपको सीए के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस का सीए के बारे में। तो ये आप कर सकते हो व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट, बट इसकी प्रिपरेशन जो है आप ग्रेजुएशन के पहले भी कर सकते हो। यू आर अ नैक A+ कॉलेज, राइट, हंसराज इज अ नैक A+ कॉलेज। तो बेसिकली 3 साल के ग्रेजुएशन से आपको 120 क्रेडिट्स मिलता है, विच इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू स्टार्ट डूइंग यूएस सीपीए। सिर्फ 4 एग्जाम्स देने होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज क्लोज टू 4 लाख रुपीज एंड यू बिकम अ सीए, एंड द पासिंग रेट इज ऑल्सो क्लोज टू 50 to 60%। एंड आज के दिन पे सीए और यूएस का जो सीपीए दोनों बराबर है। यूएस का कोर्स है, जितनी भी एमएनसी कंपनीज है, टॉप बैंकिंग कंपनीज है, जहां पर भी आपका ग्लोबल लेवल का बात आएगा वहां पर यूएस सीपीए का बात आएगा। इंडिया इज बिकमिंग द हब। व्हाई कोर्सेज लाइक एक्चुअरीज, सीएफए, एफआरएम, यूएस सीपीए आर ऑन द राइज?
because India is becoming the global knowledge center for all these programs. आज के दिन पे वहां के लोग अगर 1 करोड़ की सैलरी डिमांड करते हैं, तो वी इंडियंस वी आर हैप्पी विद द सेम पोस्ट एट 30 लाख रुपीज. अगर कोई आपको बोल रहा है भाई 20 लाख का नौकरी है, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, राइट? तो बेसिकली दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. वो लोग यहाँ पर अपना नॉलेज सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई USCPA इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोग्राम. अगेन इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सिंपल है, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, और आप इसको 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, राइट? एंड जो स्टार्टिंग पैकेज जो होता है USCPA का, दैट इज क्लोज टू 10 लाख रुपीज. एंड देन डेफिनेटली आज के दिन पे बहुत लोग का ये है ना कि मेरे को CA नहीं करना है, बट मेरे को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो अब US का CPA करो. आप उसका प्रेप पहले से चालू कर सकते हो, एंड एज एन व्हेन यू ग्रेजुएट आप एग्जाम्स दे दो. आपका थोड़ा जो इसमें क्या होता है, थोड़ा आपका एलिजिबिलिटी का बस प्रॉब्लम है कि आप कॉलेज के पहले इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज US ये मानता है कि भाई कोई भी कोर्स हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के बाद ही करो, ठीक है? या गनिका, आई टेक ऑल द डाउट्स, ओके? So let me just discuss 2 more minutes, and then I will open the house for questions. Okay, don't worry. Okay, now talking about the difference between the main difference in CA and USCPA की CA मैंने जैसे सबको बताया कि आप पूरा फ्री में कर सकते हो, बट USCPA क्या आपको 4 लाख रुपए लगता है टोटल में. अगर आप सारा एग्जाम्स एक बार में क्लियर करते हो तो प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे इसका एग्जाम्स होता है, और आज के दिन पे इंडिया में देयर इज ह्यूज डिमांड. जैसे CA में तो क्या है भाई, आपको ये मालूम है कि भाई मेरा हो सकता है मैं 2.5 साल किया, जो मैंने आपको बताया ना 2.5 साल किया, फिर आप फाइनल में अटक गए. अगर आप फाइनल में अटक गए ना भाई, तो आपका वैल्यू बहुत कम हो जाता है. CA या तो CA होता है, जैसे भी सीरीज निकला हाफ CA, वो मैं देखा नहीं हूँ, बट उसमें एक ही चीज समझाया जाएगा, तो CA होता है फिर नहीं होता है. हाफ CA बोल के कुछ नहीं होता है, आधा पौना पूरा कुछ नहीं होता है, या तो होता है फिर नहीं होता, मतलब पूरा ही होता है, ठीक है? सो नाउ अब इसमें क्या आपका पासिंग रिजल्ट बहुत अच्छा है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है 180 प्लस कंट्रीज में, तो बेसिकली USCPA इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन विच यू कैन एक्सप्लोर सिंस द पासिंग रिजल्ट्स आर गुड. और सारा MCQ बेस्ड एग्जाम होता है USCPA में, ठीक है? और इसका एग्जाम हर दिन होता है. आप जिस दिन प्रिपेयर हो आप जाके एग्जाम दे दो, आप कोई भी दिन प्रिपेयर हो, आप इसका एग्जाम हर दिन होता है, और इसका रिजल्ट भी जल्दी आता है, 2 महीने में आ जाता है, राइट? तो एक एग्जाम के लिए रजिस्टर किया कि आप 1 साल के अंदर USCPA क्वालिफाई कर सकते हो, एंड इट्स इक्वली गुड एज डूइंग CA. Okay, so now I have discussed more courses, and there are few more courses like MBA. देखिए MBA में आपको बार बार बताता हूँ, MBA आप दे सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, एंड व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर तो फिर आप कैट एग्जामिनेशन देते हो, राइट? बट आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये एग्जाम साल में एक ही बार होता है, ठीक है? ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में बैकअप नहीं होता है. आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपना एक बैकअप रखो. आई नो सेफ्टी नेट किल्स द ड्राइव, आई नो इट, आई एम ऑल्सो यूथ. मेरा उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आई एम 28 टर्निंग 29 टुमारो. आई नो सेफ्टी नेट किल्स द ड्राइव, बट आपको ये समझना होगा कि MBA का एग्जाम साल में एक बार होता है. यू नो व्हाट, आई वाज द सीरीज ऑफ एस्पिरेंट्स. उसमें एक लाइन बोलता है, मतलब एक नंबर पूरा साल खा गया, because you know there are 3 lakh plus CAT applicants, okay, and how many make their career? Maybe 6,000, maybe 8,000. Others they struggle a lot. And you know what, with the increasing use and with the increasing basically discovery of AI and how AI can impact, the value of consultants has already gone down, okay? Because आज के दिन पे पहले क्या होता था, 10 वेबसाइट से खोजना पड़ता था, आज के दिन पे वो काम AI कर सकता है. So it's all about कि आप कितना दिमाग लगा सकते हो. आज के दिन पे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कोर्स नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, बिकॉज आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगा कि आप AI क्या बता रहा है आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ. So again, that is really important. आपको ये चीज समझना होगा, right? The world is changing really dynamically. So MBA is a very good option, but मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जो आपके पास में टाइम है 2.5 साल का 3 साल का, इसमें प्लीज आप कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करो. आई लाइक माधव व्हाट इज सेड कि सर मेरे को फाइनलिस्ट बन जाने दीजिए, उसके बाद मेरे पास 2 साल रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए. आई कैन डू FRM, I can do actuarial science, I can do CFA, I can do MBA, right? मेरे बहुत सारे friends ने ऐसे किया. Just wait, I think this thing has decharged, so I'll just wait. Yeah, मेरा voice सबको आ रहा है ना? Voice तो सबको आ रहा होगा ना? Okay. तो basically बहुत सारे मेरे friends थे, उन्होंने basically they cracked IIM, they went and after that they cleared their CA finals. But पता है वो जो बैकअप रहता है ना आपके दिमाग में, आपको हमेशा ये रहेगा कि भाई ये नहीं हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ, राइट? वो प्रेशर नहीं बनता आपके दिमाग में. तो प्लीज MBA का एक जो होता है ना डेलुलू में मत रहिएगा कि भाई मेरा कैट तो हो ही जाएगा वाला चीज नहीं है. When I went to DU, I will tell you the candidates they are absolutely superb.
बट फाइनेंस को लेके मैंने जो देखा है कि वो लोग अपना मेन जो फाइनेंस करियर है वो लोग चालू ही कर रहे व्हेन दे आर इन थर्ड ईयर, बिकॉज व्हेन द प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट्स तब उनको ये समझ में आता है कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब क्या करना है। बट पहला 2 साल पूरा कॉलेज में दिया, वही अगर आप 1 घंटा डेली का दे देते कोई भी फाइनेंस करियर ऑप्शन को, एक अच्छा फाइनेंस करियर ऑप्शन आप चूज करके उसको 1 घंटा देते, तो वो बहुत वैल्यू ऐड करता। ओके, सो that's it from my end. Now I'll open the house for questions, so you can post all your questions in the chat box. Okay, I will take all the questions because I have a lot of time today. Okay, yeah, so yeah, does notebook LM, देखिए सबका पेड भी होता है और अनपेड भी होता है, बट अभी आप अनपेड में पहले ट्राई करो, फिर अगर आपको उसका यूज लगता है तो छोटा छोटा सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे चैट जीपीटी है उसका गो वाला आप ले सकते हो, महीने का 400 रुपया। आप किसी फ्रेंड के संग में गए, कॉफी पी लिए, 400 रुपए गया, वही अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको ऐसा बड़ा मत देखो दिमाग में, महीने का 400 रुपए में दे हैव इंक्लूडेड द गो वर्जन। ओके, निर्मल ने क्वेश्चन पूछा, सर आई हैव अ सिली डाउट बट आई वंस हर्ड फ्रॉम माय पीयर्स दैट क्लियरिंग सीएफए लेवल 1 इज कंसीडर्ड मोर वैल्यूएबल देन क्लियरिंग सीए फाउंडेशन। निर्मल सिंह को डेफिनेटली, बिकॉज सीए फाउंडेशन आपने क्लियर किया, फाउंडेशन का जो सिलेबस होता है वो होता है मैथ्स, उसमें होता है अकाउंट्स, इको और लॉ, कोई कंपैरिजन नहीं है निर्मल सीएफए लेवल 1 में और सीए में कोई कंपैरिजन नहीं है। सीएफए लेवल 1 बेसिकली मैं ये बोलता हूँ कि आपने 1/3 क्लियर किया है, बट सीए फाउंडेशन आप ये मत देखो कि आपने 1/3 क्लियर किया है। सीए का असली वैल्यू बनता है जब वो इंटर क्लियर करता है, जब वो फाइनल क्लियर करता है। निर्मल सिंह को, ओके, देयर इज नो कंपैरिजन वैसे मत करिए आप। जो जॉब की बात करूंगा मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, सीएफए लेवल 1 करके भी कोई जॉब नहीं है, मिनिमम आपका 2 लेवल क्लियर होना चाहिए। Ganika is saying how to decide whether to do CA or CFA, and if we are doing CA then we should go for FRM. Yes Ganika, FRM एक ऐसा कोर्स है जो एक्चुअरियल साइंस, CFA सबके साथ जा सकता है। अगर आप CA कर रहे हो तो आप इंटर के बाद में FRM का दोनों लेवल क्लियर कर सकते हो, तो आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, MNC कंपनीज, रिस्क की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनती है, तो आप कर सकते हो। ओके, या उसके बाद में आदित्य सिंह, सर एक्चुअली वांट टू परस्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो हाउ एग्जैक्टली वुड आई अप्रोच बिल्डिंग माय सीवी। आदित्य, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में है तो आप एफआरएम से चालू करो, उसके बाद यू प्लान योर सीएफए, और या फिर अगर आप एफआरएम करते हो तो फिर उसके बाद में अगर आपको एमबीए करना है तो आप एमबीए से भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। या तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एफआरएम प्लस सीएफए का प्रोफाइल, या फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा एफआरएम प्लस एमबीए का प्रोफाइल। बट खाली सीएफए से ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है आपका लग जाए, बट खाली सीएफए से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देखो सीए बन के ना बहुत लोग को ये रहता है कि मेरे को मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बेन मैकेंजी, बॉस्टन में जाना है, ठीक है, बट सबका लगता नहीं है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है आदित्य, which society is the best for actuarial, IIA or IFOA, since IIA has also introduced a typing system? पियांशी बंसल, I will recommend IFOA because देखिए IFOA का क्या है, स्टैंडर्ड पासिंग परसेंटेजेस है, बट अगर आपको कॉस्ट सेविंग करना है और आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड IIA, बिकॉज दोनों का जो एक्सेप्टेंस है बिल्कुल सेम है। ठीक है, एंड इफ यू हैव द डेयरिंग कि आप कुछ नया चुन सको तो डेफिनेटली एसओए, तीनों सोसाइटी में एसओए सबसे अच्छा है। बट अगर आपको ये है कि आपको सेफ पाथ चूज करना है तो IFOA इज द सेफेस्ट अमंग ऑल थ्री। एक्सेप्टेंस भी अच्छा है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, और उसका अभी एग्जामिनेशन भी ऑफलाइन हो रहा है, सेंटर से हो रहा है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पियांशी बंसल, इज एफआरएम इनफ फॉर अ गुड जॉब और शुड अ पर्सन डू समथिंग एल्स? देखिए रिशिता, अगर आप खाली एफआरएम करते हैं, अच्छे से पढ़ के देते हैं, तो डेफिनेटली आपने अगर अच्छे जगह से ट्रेनिंग ली है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो फिर डेफिनेटली आप एफआरएम के बेसिस पे भी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले एफआरएम कंप्लीट कीजिए, फिर अगर आपको लगता है आपको और कुछ पढ़ना है तो आप पढ़िए, ऐसा क्या दिक्कत है। सर शुड आई फोकस मोर ऑन सीजीपी और इंटर्नशिप्स एंड कंपटीशन? निर्मल सिंह को, आपको कॉलेज में मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ 60% मिनिमम आपको मेंटेन करना ही करना होगा, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज में फिल्टर होता है। अगर आपका 60% मतलब सीजीपीए क्लोज टू 7, अगर आपका सीजीपीए क्लोज टू 7 नहीं है तो आप चाहे कितने ही तोप क्यों ना हो, आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो लोग आपका सीवी देखेंगे ही नहीं। नंदिनी नथानी सिंह से एनआईएसएम सर्टिफिकेट आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है ना। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं करने को, बट आई विल रिकमेंड देयर आर बेटर ऑप्शंस। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट वुड द जॉब ऑफ एक्चुअरियल्स बी अफेक्टेड बाय एआई? पियांशी बंसल, देखिए एक्चुअरीज एक ऐसा कोर्स है जिसमें टेक भी है, एआई भी है, मॉडलिंग है, फ्यूचरिस्टिक चीज है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत जो डेटा एंट्री के जॉब्स है, मतलब जो लोअर लेवल के जो जॉब्स है, वो बेसिकली ऑटोमेट हो सकते हैं, बट बाकी एक्चुअरीज एक ऐसा फील्ड है जिसमें एआई का इम्पैक्ट सबसे कम आएगा। इसका रीजन क्या है कि हम लोग जो काम करते हैं फ्यूचरिस्टिक काम करते हैं, हम लोग दिमाग वाला काम करते हैं, हम लोग बनाने, मॉडल्स बनाने का काम करते हैं, हम लोग प्राइसिंग रिजर्विंग करते हैं, जहां पर
बेसिकली ऑलरेडी वी आर यूजिंग लॉट ऑफ एआई, उसके आने के पहले भी हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते थे। अभी हम लोग जिस जनरेशन में, इस जनरेशन को बोलते हैं जेन एआई, जेन एआई, और इसके बाद हम लोग जिसमें जाएंगे वो होगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी एक्चुअली कम इम्पैक्ट होगा कंपेयर टू अदर कोर्सेस, ठीक है। What would be the value and prospect of CFA on an international level? Kritika Bagadia, it's a very good program. It's a gold standard program and काफी valuable है। अगर आप अच्छे से करते हो तो definitely it's a very good big go for from my end. Okay. Is NISM and NCF certificate useful for starting in finance? पलक गर्ग, I will not recommend. अगर आपको चालू करना है तो कोई एक अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम से चालू कीजिए। Is CFA with actuarial a good combination? Yes, Ritik, it's a very good combination. Start आप actuarial से करो, clear 5 to 6 exams। आप अगर actuarial करते हो तो अगर आप CFA के साथ में करते हो तो आपको एक्चुअल में एग्जेम्प्ट मिलता है। जैसे आपका CB 1 2 3 और आपको एक SP लेवल पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बनते हो तो आपको SP 5 SP 7 जैसे पेपर्स बहुत इजी हो जाएंगे। CM 2 आपके लिए इजी हो जाएगा। मॉडलिंग इन एक्सेल आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CFA FRM एक्चुअलियल्स तीनों किया, तो आप कर सकते हो। CFA और CPA, चिन्मय गुप्ता, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। अगर आपको फाइनेंस स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप CFA करो। अगर आपको ये है कि आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है, आपको बेसिकली अकाउंटिंग जॉब ज्यादा पसंद है, ऑडिटिंग जॉब ज्यादा पसंद है, आपको अकाउंटेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप CPA करो। दोनों का एक्सेप्टेंस बिल्कुल सेम है। Sir, I want to have a career in the consulting field. Which approach would be beneficial for me as I had to manage a cat? Definitely आप कर सकते हो निमिषा सागर। आप मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि आप उसके साथ कुछ एक छोटा सा चीज करो। Either try doing FRM or try doing CFA का 2 levels. Definitely it helps a lot. Definitely it helps a lot. Consulting का प्रोफाइल definitely आपको मिलेगा, बट मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि 5 साल आगे क्या होगा you don't know, right? तो बेसिकली वर्ल्ड इज चेंजिंग डायनामिकली, तो प्लीज आप अपना एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करो। जितना पढ़ सको उतना कम है। ये 5 साल आप अपना दो और फिर आप देखो कि आपको कितना वैल्यू मिलता है इस चीज से। Currently, I don't know what is the right course for me. So, is it good to explore every domain for up to 1 to 2 months and then choose accordingly? Definitely, प्रणय, आप चूज कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको अपना एंड रिजल्ट समझना होगा। आप थोड़ा सा ट्राई करिए, आप थोड़ा और भी रिसर्च करिए। आई थिंक यूट्यूब इज स्टिल द बेस्ट प्लेस टू गेट डिस्कवर्ड। आप यूट्यूब यूज करो, आप थोड़े डेमो वगैरह देखो तो आपको अकॉर्डिंगली समझ में आएगा। निर्मल सिंह को इज सेइंग सर, आई हैव Udemy subscription where completing a course gives me certificate. If I add those certificates to my CV for internship, will they actually make a difference? Yes, Nirmal Singh, but it should not be something that you are doing a collection. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंप्लीट किए कलेक्शन, उसका मेन आप वो पर्पस समझो। आप उसका पर्पस समझोगे तब वो आपको वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तनिष इज सेइंग सर, इफ समवन इज परसुइंग CA, कैन दैट बैकग्राउंड हेल्प हिम गेट अ कॉल? यस, CA का अलग से कैटेगरी बन जाता है, एक्चुअली का अलग से कैटेगरी बन जाता है, CFA का अलग से कैटेगरी बन जाता है। तो बेसिकली डेफिनेटली अगर आप क्वालिफाइड CA हैं, आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो बेसिकली आपका एक अलग से कैटेगरी बन जाता है, तो वो आपका डेफिनेटली रहता ही रहता है। तनिष, CA वर्सेस CFA फॉर IB एंड PE, इज CA रेलेवेंट? यस डेफिनेटली। मैं तो बोलूंगा वर्सेस हटाइए, आदित्य चौधरी, और प्लस लगा दीजिए, CA प्लस CFA करिए आप, ठीक है। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा आदित्य चौधरी, CA का 2 लेवल क्लियर कीजिए, फिर CFA चालू कीजिए और फाइनल दीजिए और फिर अपना CFA कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ठीक है। सर, कंसिडरिंग आई एम परस्यूइंग एक्चुअल साइंसेज, व्हाट एक्स्ट्रा स्किल्स वुड यू रेकमेंड मी नाउ which would help me in the future? आरुष नेवेटिया, जैसे कि आपको मैंने बताया AI, डेफिनेटली मैम ने आपको बताया होगा, वर्कशॉप्स लाइक SQL, VBA, R, Python, Power BI, these are very important, definitely AI. Okay. Ritik Bothra is saying, sir, please suggest combination of courses that increase each other's value. अगर आपको क्वांट में इंटरेस्ट है, जो आने वाला टाइम में मेरे को लगता है क्वांट का बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा। सो अगर आपको क्वांट में इंटरेस्ट है तो यू कैन डू मे बी एक्चुअलीज, उसके साथ में आप CFA या फिर FRM क्लब कर सकते हो। मतलब फ्यूचर प्रूफ अगर करियर चाहिए तो एक्चुअलीज प्लस FRM आप कर सकते हो, प्लस AI आप CFA FRM कर सकते हो। यू कैन गो फॉर CFA MBA, यू कैन गो फॉर CA MBA। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। Sir, what are the main AI tools we all must use now? Madhav Agarwal is saying MBA after WorkX. मैं डेफिनेटली आई एम ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, मैं हमेशा MBA रेकमेंड करूंगा आफ्टर WorkX। जैसे मेरा वर्क, मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते करीब 12 साल हो गया है। तो अब अगर मैं जाऊंगा MBA में अच्छे से MBA करने, तो मैं जो वैल्यू ऐड कर पाऊंगा बिजनेस में वो आप नहीं कर पाओगे फिर जस्ट डूइंग MBA आफ्टर ग्रेजुएशन। तो डेफिनेटली माय ऑलवेज प्रेफरेंस विल बी कि आप WorkX लेके MBA करने जाओ, ठीक है। AI टूल्स देखिए, मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, बट फॉर वीडियो क्रिएशन इट इज हेजन, 11 Labs, Runway ML. For your documents you can use Notion, Todoist,
उसके बाद में नोटबुक LM, गामा फॉर PPTs, there is Claude, Perplexity, Grok, Gemini, Chat GPT. Okay, then you can use Copilot, Lovable AI, Llama Coder is there. All these AI softwares, basically you can definitely try it out. Okay, and we do have workshops in Delhi, so आप वो भी एक बार try कर सकते हो. 12th of October we are having a workshop, so basically आप उसके लिए भी register कर सकते हो. Sir, I saw some CA profiles in Big Four. After 3-4 years, they are promoted to consultants and all. However, same roles are achieved immediately after MBA from Tier 1. एक ही तो बात हो गया ना. आप एक चीज समझो, CA बन जाओगे, उसके बाद आप 3-4 साल बोल रहे हो, तो MBA में भी तो आपको 2 साल लगेगा ना, और MBA में आपको पैसा भी देना होगा. CA आपका फ्री में हो जाएगा. बात एक ही पड़ेगा आपका. आप जब नेट देखोगे तो नेट आपका वही हिसाब पड़ेगा. Earlier you said value of consultant has reduced, so how should I avoid that? ऐसा कुछ नहीं है. Value of consultant has reduced, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक जो कंसल्टेंट है उसका काफी हद तक काम आज के दिन पे AI कर सकता है. एंड आप देखोगे जितना भी सारा जो कंसल्टिंग फर्म जैसे कि बेन, मैकेंजी, बॉस्टन, तो बेसिकली दे हैव देयर कोलैबोरेशंस विद AI लाइक OpenAI, Gemini. So basically they already are using AI to a lot more extent. So आने वाला टाइम में अगर कोई मेरे को ये बोलता है, मैं आप थिंक से सुनो कि मैंने क्या बोला. अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि सर मेरे को कंसल्टेंट बनना है, तो मैं बोला कि आप अपने चॉइसेस को नैरो डाउन मत करिए, बिकॉज आने वाला टाइम में कुछ भी हो सकता है. क्योंकि आप बात कर रहे हो, आप कंसल्टेंट के जॉब में लगोगे आज से ठीक 5 साल बाद, तो 5 साल में हो सकता है कंसल्टेंट का वैल्यू पूरा खत्म हो जाए, हो सकता है एक्चुअरीज का वैल्यू पूरा खत्म हो जाए, हो सकता है FRM का वैल्यू पूरा खत्म हो जाए. तो बेसिकली आप ऐसे स्टबर्न मत रहो कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है. आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, आप पहले वो देखो कि भाई आपको फाइनेंस पढ़ना है, आपको रिस्क पढ़ना है, आपको अकाउंटिंग पढ़ना है, आपको क्वांट पढ़ना है, मिक्स पढ़ना है, तो आपको क्या पढ़ना है पहले वो देखो कि आप किसमें एक्सेल कर सकते हो. आप कोर्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हो कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसमें जाऊंगा, कंसल्टेंट इन बेन बोलने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसमें जाऊंगा, बट ये गलत है. आप देखो कि अभी आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, बिकॉज सारे कोर्सेज का बहुत अच्छा वैल्यू है. आप CA बोल रहे हो, मैं CA ला सकता हूं जो 60 लाख भी कमाता है, जो 6 लाख भी कमाता है. मैं एक्चुअरीज ला सकता हूं जो 1 करोड़ भी कमाता है और जो 3 लाख भी कमाता है. तो बेसिकली आप समझ रहे हो, मतलब सैलरी स्केल इज वेरी स्क्यूड डिपेंडिंग ऑन द बेसिकली स्किल सेट ऑफ द प्रोफेशनल, कि आपके पास में क्या स्किल सेट है. सर एनी रिलायबल कोर्स टू लर्न. देखो ऐसा कोई बहुत महंगा कोर्स मत ज्वाइन करना, हम तो 500 में कराते हैं, ठीक है. सिंस इट्स वेरी लो वैल्यू, मैं आपको बता सकता हूँ हमारे सेंटर पर ही होता है. बेसिकली 12 अक्टूबर को हो रहा है, जस्ट हम 500 में ही कराते हैं, बिकॉज मेरे को मालूम है कि भाई इसका मैं लाख रुपए भी चार्ज कर सकता हूँ. हमारा 5 घंटे का वर्कशॉप होता है, ठीक है. तो उससे ज्यादा मेरे को लगता है किसी को स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल कि आप कितना सीख सकते हो. आपको बस खाली एक बेसिक हम बता देंगे, बाकी आप कितना उससे खेल सकते हो, तो उससे ज्यादा स्पेंड करना कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है. Okay, so that was a lot of questions. So I would like to now basically end this session by saying thank you to all of you for being so attentive, and I really like कि भाई ऑफलाइन में लोग उतना ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पर ऑनलाइन में सब लोग मेरे साथ थे, सबने अपना कैमरा ऑन करके बहुत अच्छे से सुना. इवन इन फ्यूचर यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, डू रीच टू अस. ओके, बट डेफिनेटली मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू समथिंग अबाउट माय जर्नी 5 मिनट में. when I was in class 12, मेरे को मालूम था कि भाई मेरे को क्या करना है. I started with CA, मैंने 2 लेवल CA का किया, उसके बाद I started with actuaries, मेरे को FRM में इंटरेस्ट आया, मैंने FRM किया, ठीक है. एंड अभी भी I am स्टडिंग का प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है. आपको ये चीज समझना होगा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे एक जन ने क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि सर मैं क्या कर लूं अभी ताकि मेरा फ्यूचर करियर प्रूफ हो, मेरा जो करियर है वो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आज के दिन पे जब AI आया तो हमने लास्ट 2 साल उसको सीखा, अभी हम सिखा भी रहे हैं, तो कुछ और आएगा, उसके बाद में कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा. जब डेटा एनालिटिक्स आया था तो हमने मास्टर्स किया डेटा एनालिटिक्स में, मैम ने किया, एंड बेसिकली वी स्टार्टेड ट्रेनिंग इन 2020. तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि भाई विद ट्रेंड यू नीड टू मूव, एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस आपको, लेकिन वो स्टार्ट करना होगा. कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स आप चालू करो, ठीक है. टॉक टू पीपल, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, थोड़ा मटेरियल्स वगैरह देखो, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरे को ये करना है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच FIC सेल हंसराज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड इट वाज रियली 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 थैंकफुल. मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग सबसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Even we are very happy
to have you organize like this webinar for all the students, and I hope all the students also love the same. If nobody has any questions, then they can leave. Okay. Thank you so much.